Welcome, my dear students. In the today's session, we will be taking up topic of proportion. In the topic of proportion, we'll be seeing the concept of continued proportion. Basically, what is proportion? First of all, to initiate with, then continued proportion, mean proportional, law of equal ratios, their applications, and ultimately some practice questions. So this is agenda of today. Session को start करते हैं. And if you've not already subscribed to the YouTube channel, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट. अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर करना है, ठीक है. और अपना फीडबैक भी हर सेशन में जरूर देना है. अगर तुम्हें सेशन पसंद आया तो फीडबैक देना है, कहीं पे डाउट रह गया तो जरूर कमेंट में मेंशन करना है कि यहाँ पे डाउट रहा है सर, एक बार थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दो, तो नेक्स्ट सेशन में विल बी कंटिन्यूइंग टू दैट. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल फॉर द फ्री कंटेंट पीडीएफ्स. एंड ऑल्सो शेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, भाई तुम तो देख ही रहे हो, तुम तो बेनिफिट ले रहे हो, साथ में अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है सेशंस तो अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करो जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is proportion and what is ratio? Difference क्या है रेशियो proportion में? तो as we know, रेशियो में हमने क्या देखा, रेशियो क्या होता है? रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज. And in contrast, when we are talking of proportion, proportion is equality of two ratios. Equality of two ratios. तो let us say हमें ratios given है A और B का और C और D का. And if both of these ratios are equal, so we represent this as A is to B is in proportion with C is to D. And this can also be written as A is to B is equal to C is to D, or A upon B is equal to C upon D. Both are equal. एक ही बात है, ठीक है. और this sign means in proportion with. So when two ratios are equal, that is represented by proportion. And in that representation, there are four quantities A, B, C and D. Okay, in that order. So the first quantity, which is now represented as A, तो first quantity को हम कहते हैं first proportion. Second quantity is said second proportion. Third quantity is third proportion. And fourth one is fourth proportion. And A and D, since these are at two extreme ends, so A and D are also represented as extremes, and B and C are in the middle, so B and C are called means. Extremes and means भी कहा जाता है, और first proportion, second proportion, third proportion, fourth proportion भी हम कहते हैं. Okay, so since A upon B, this is equal to C upon D. So if we cross multiply these values, so A into D becomes equal to B into C. This is an important result. Basically, this result means that product of extreme values is equal to product of mean values. कोई दिक्कत? So product of extreme values is equal to product of mean values. A into D is equal to B into C in any proportion. First quantity multiplied by first proportion multiplied by fourth proportion is always equal to second proportion multiplied by third proportion. Clear? फिर एक स्पेशल केस आता है proportions में. That special case is when second proportion and fourth proportion are equal. When these two are equal, that is a special case. So which implies कि A is to B, और फिर third proportion is also equal to B. So if this is the case, this is our proportion. So A is to B is equal to B is to C, यानी A upon B is equal to B by C. So that implies कि B square will be equal to AC.
b square is equal to AC, and in any such case this is called mean proportion. मीन प्रोपोर्शन. इन सम ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ए और सी गिवन हो, ए एंड सी आर गिवन, और क्वेश्चन पूछे कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा. तो इफ मीन प्रोपोर्शन को हम एज्यूम करें, लेट अस से x है, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC और x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC. तो इज दैट क्लियर? ठीक है. एंड दिस प्रॉपर्टी व्हेन द सेकंड एंड फोर्थ नहीं, सेकंड एंड थर्ड प्रपोर्शन है, सेकंड एंड थर्ड प्रपोर्शन है. तो व्हेन सेकंड एंड थर्ड प्रपोर्शन आर इक्वल, दिस इज आल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन. कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन विच इंप्लाइज, बेसिकली कॉन्टिन्यूड कैसे हुआ कि ए अपॉन बी का जो रेशियो है, ए और बी का जो रेशियो है वही सेम रेशियो हमारा बी और सी का भी है. तो ए और बी का जो रेशियो, फॉर एग्जांपल ए मल्टीप्लाइड बाय 2 इज बी, इन दैट केस बी से सी में जाएंगे तो सी विल बी बी मल्टीप्लाइड बाय 2. दैट इज व्हाट वी मीन बाय कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन. इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं. सो लेट अस से गिवन है कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी एंड दैट इज इक्वल टू डी बाई ई एंड दैट इज इक्वल टू ई बाई एफ. तो इफ दिस इज अ कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि लेट अस से इफ दिस इज इक्वल टू 2, देन ए इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू 2c, c इज इक्वल टू 2d एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो क्या इस प्रॉपर्टी से कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कुछ सिमिलरिटी देख पा रहे हो? इफ यू कैन रिकॉल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो क्या ये सिमिलर नहीं है? इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर हम कॉन्टिन्यूड टर्म्स को देखें, फर्स्ट टर्म हमारा ए है, नेक्स्ट टर्म अगर बी है, फिर सी है, डी है, ई है, तो ए अपॉन बी या बी अपॉन ए बेसिकली वहां पे हम लिखते हैं. सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म, दैट इज इक्वल टू फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म बाई फोर्थ टर्म. दिस इज इक्वल टू कॉमन रेशियो आर. इजंट इट सो? तो यहाँ पे जब भी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो वी शुड अंडरस्टैंड, सिंस दिस इज अ कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एवरी टर्म, एवरी अदर टर्म, ऑल द टर्म्स आर इन ए कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बिकॉज उनका जो रेशियो है दैट इज सेम. तो क्या ये बात क्लियर होती है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम कंपेयर करा सकते हैं. दे आर सिमिलर इन नेचर. डिफरेंस समझ में आता है, सिमिलरिटी समझ में आती है कि जब भी हम कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, इफ ऑल द कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर इन अ respective ratio, are in same ratio, then that particular series of progression is called in a continued proportion. Clear? Okay, ठीक है. So in general इसका relevance क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कंपेयर कराने का बेनिफिट क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 4 टर्म्स गिवन है and it is given that these terms are in continued proportion, so we can assume कि these terms are in geometric progression because वहां पे भी continued proportion ही आएगा. So first term को अगर हमने a मान लिया, second को we can assume that ar square and ar cube. We can assume these 4 terms with 2 unknowns a and r. ठीक है. The only difference is कि अगर तुम continued proportion में देख रहे हो तो a upon ar, this will be equal to ar upon ar square, this will be equal to ar square upon ar cube. So ratio will be 1 by r. Clear? ठीक है. सो दिस वे वी कैन यूज द कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. क्लियर होती है बात ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ कमिंग टू डायरेक्ट proportion and inverse proportion. What is the direct proportion? Let us say we have two quantities, quantity 1 and quantity 2, and when we increase quantity 1, the quantity 2 also increases in the same proportion, that also increases in the same proportion, or when we decrease quantity 1, quantity 2 also decreases by the same proportion. In such a case we can say that both these two quantities are in direct proportion. Example लेते हैं इसका. For example, if we are purchasing 2 pens, 2 pens हमारे आ रहे हैं 20 रुपीज़ के, ठीक है, 2 पेन्स आ रहे हैं 20 रुपीज़ के. अब अगर हमें 5 पेन्स परचेज करने हैं, क्या कॉस्ट आएगा? अगर 2 पेन्स हमारे 20 रुपीज़ के हैं तो वी कैन डेफिनेटली से कि 1 पेन का कॉस्ट क्या आएगा? 1 पेन विल बी 20/2. यूनिटरी मेथड से करेंगे तो
यानी कि 10 रुपीज़ का होगा, और अगर 1 पेन 10 रुपीज़ के हैं तो 5 पेन हो जाएंगे 5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 50 रुपीज़ के। तो इफ़ वी आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेन्स तो हमारा जो कॉस्ट है टोटल वो भी इंक्रीज करेगा, और अगर हम नंबर ऑफ पेन्स को डिक्रीज कर देंगे 2 से 1 पे लाए तो कॉस्ट भी हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो दैट इज वाई दीज पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स एंड टोटल कॉस्ट आर इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नंबर ऑफ पेन्स को इंक्रीज करोगे तो हमारा कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ पेन्स को डिक्रीज किया तो हमारा कॉस्ट भी डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? बाकी इस चीज़ को जब वेरिएशन में करेंगे तो वहाँ पे और प्रॉपर्ली इन बातों को समझेंगे। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। सिमिलरली देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में ठीक इसका उल्टा होता है। देयर आर टू क्वांटिटीज Q1 एंड Q2। तो इफ Q1 को हम क्वांटिटी 1 को इंक्रीज कर रहे हैं तो रिस्पेक्टिवली क्वांटिटी 1 हमारा डिक्रीज करेगा, और अगर हमने क्वांटिटी 1 को डिक्रीज किया तो क्वांटिटी 2 हमारा इंक्रीज कर जाएगा। अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो लेट अस से वी हैव टू ट्रैवल अ डिस्टेंस इक्वल टू 20 किलोमीटर। ठीक है। सो अगर हमें डिस्टेंस इक्वल टू 20 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो अगर स्पीड इज इक्वल टू, इफ स्पीड इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर तो टाइम कितना होगा? इफ स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर तो 2 आवर्स में डिस्टेंस कवर हो जाएगी। और अगर हमने स्पीड को डिक्रीज कर दिया 10 से 5 पे लेके चले गए, तो इफ स्पीड इज नाउ 5 किलोमीटर पर आवर तो इन सच ए केस हमारा टाइम लगेगा 4 आवर्स, यानी कि टाइम इंक्रीज कर जाएगा। स्पीड तो डिक्रीज किया बट टाइम इंक्रीज कर गया। इंस्टेड अगर हमने 10 से या 5 से हम इंक्रीज करें और स्पीड कर दें 5 की बजाय 20, अब स्पीड अगर हो जाए 20 किलोमीटर पर आवर यानी कि स्पीड 4 टाइम्स हो गई, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? टाइम विल बी ओनली 1 आवर, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो टाइम में डिक्रीज आ जाएगा। जब हमने स्पीड को इंक्रीज किया तो टाइम डिक्रीज हुआ, जब स्पीड को डिक्रीज किया तो टाइम इंक्रीज हुआ। बेसिकली क्योंकि सेम डिस्टेंस हमें ट्रैवल करनी थी, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो अगर हमारा स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो टाइम विल डिक्रीज, और अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो टाइम इंक्रीज करेगा। तो स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है। स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि स्पीड का जो रेशियो होगा अगर S1 अपॉन S2 है तो टाइम का रेशियो ठीक है उसका उल्टा होगा, T2 अपॉन T1 होगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का नंबर है n, या नंबर मान लेते हैं। लेट अस से n की बजाय n इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा 50 है, और 50 स्टूडेंट्स के लिए टोटल 40 डेज का फूड है। स्टूडेंट्स हमारे 50 हैं और 50 स्टूडेंट्स के लिए 40 डेज का फूड अवेलेबल है। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम डिक्रीज कर दें और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे हो जाएं 25, तो कितने टाइम तक फूड चलेगा? डेफिनेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम 50 से 25 कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टाइम जितने समय के लिए फूड चलेगा वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ एक ही स्टूडेंट होता, सिर्फ एक ही स्टूडेंट होता तो नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ डेज बढ़ जाता। कितना बढ़ता? 50 इंटू 40 हो जाता। इन दैट केस 2000 डेज चलता हमारा जो फूड है। और अगर हम कर रहे हैं 25 तो 25 अगर हमने 1 से 25 किया है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम रिस्पेक्टिवली डिक्रीज कर जाएगा। कितना टाइम बचेगा? 2000 डिवाइडेड बाई 25, तो दैट विल बी इक्वल टू 80 डेज। 80 डेज हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है। ओके, now let us see some properties of proportions. First is if it is given that A upon B is equal to C upon D, so we can say that B upon A, ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, that B upon A will also be equal to D upon C, जिसको कहते हैं इन्वर्टेंडो। बस कुछ नहीं किया हमने, रेशियो को इन्वर्ट कर दिया है। इफ A upon B is equal to C upon D, in such a case B upon A will be equal to D upon C, that is called इन्वर्टेंडो। यानी कि जो रेशियो हमारा इक्वल है उनके जो इन्वर्स वाले रेशियो हैं वो भी इक्वल होंगे। ठीक है। सेकंड, इफ A upon B is equal to C upon D, we can also say that A upon C will be equal to B upon D. This is known as alternando. और इन्वर्टेंडो हो या अल्टरनेंडो, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्रूव कर सकते हैं दैट A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, यानी AD इज इक्वल टू BC है। एंड इफ AD इज इक्वल टू BC है और अब हम C से डिवाइड कर दें और यहाँ D से डिवाइड कर दें तो A अपॉन C विल बी इक्वल टू B अपॉन D।
एंड सिमिलरली अगर फर्स्ट वाला केस लाना होता तो बी में ए से डिवाइड करते और डी में सी से डिवाइड करते, तो बी अपॉन ए वुड हैव बीन इक्वल टू डी अपॉन सी, तो दोनों प्रॉपर्टीज हमारी प्रूव हो जाती। क्लियर है? ओके। थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, या बेसिकली हर एक केस में ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी तो है ही है, तो वी कैन से दैट ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी विल बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। ये कैसे आया? a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर हम दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1 ऐड कर दें तो विल गेट दिस रिजल्ट दैट a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, एंड दिस इज नोन एज कंपोनेंडो। कंपोनेंडो। सिमिलरली फोर्थ प्रॉपर्टी दैट a बाई बी तो है इज इक्वल टू सी बाई डी, अगर हम दोनों साइड में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें a अपॉन बी माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस 1, तो रिजल्ट विल बी a माइनस बी अपॉन बी दैट इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, एंड दिस इज नोन एज डिविडेंडो। And now if we combine both of these properties, componendo as well as dividendo, ठीक है, कंपोनेंडो में डिविडेंडो वाला प्रॉपर्टी डिवाइड कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा उस केस में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ओके, अगर हम एक बार फिर से इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, अगर हम एक साथ करना है तो मतलब क्या हुआ, a अपॉन बी वॉज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो न्यूमरेटर में वी कैन राइट a प्लस बी, डिनोमिनेटर वी विल बी राइटिंग a माइनस बी यानी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सिमिलरली राइट हैंड साइड में c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी आफ्टर कंपोनेंडो डिविडेंडो। और अगर एक बार फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो इस पे लगा दें सो दिस विल बी a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ब्रैकेट में रखते हैं बिकॉज माइनस माइनस प्लस होगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड में आएगा c प्लस डी प्लस सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी माइनस सी माइनस डी, तो दिस रिजल्ट विल बी 2a अपॉन 2b विल बी इक्वल टू 2c अपॉन 2d। इफेक्टिवली हमें सेम रिजल्ट मिल जाएगा जिससे हमने स्टार्ट किया था a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो हम a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी से a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं और a प्लस बी अपॉन a माइनस बी से a अपॉन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है कंपोनेंडो डिविडेंडो से? इज दैट मच क्लियर? ठीक है, सो जब हमें क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना होगा तो एक साइड में तो हमारा a माइनस बी यानी अननोन रहेगा और दूसरे साइड में कोई नोन वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जांपल 4/5 हो सकता है, 7/8 हो सकता है, और फिर उससे हमें कुछ क्वेश्चन में जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको निकालना होगा, वो सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ सकती है हमको, एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है इसका? एक एप्लीकेशन हमें हो सकता है बोट एंड स्ट्रीम में, और भी कई जगह अलजेब्रा में भी जरूरत पड़ सकती है, बट बोट एंड स्ट्रीम में इसका एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर रिलेटिव स्पीड के केस में, जबकि सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन की रिलेटिव स्पीड है तो वहाँ भी इसका एप्लीकेशन का हमें ज़रूरत पड़ सकता है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू लॉ ऑफ इक्वल रेशियोज। पहले एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लें फिर क्वेश्चंस करते हैं। लॉ ऑफ इक्वल रेशियोज। तो फॉर एग्जांपल हमें रेशियोज गिवन है दैट a बाई बी is equal to c by d is equal to e by f and so on, and all these ratios are equal to k. a by b is equal to c by d is equal to e by f and all these ratios are equal to k. So we can conclude that अगर हम इन सबको सारे न्यूमरेटर्स को ऐड कर दें यानी कि a प्लस सी प्लस ई एंड सिमिलरली सारे डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दें तो b प्लस d प्लस f का जो रेशियो होगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू k. So basically sum of all numerators divided by sum of all denominators will also be equal to k. अगर हमारा लॉ ऑफ इक्वल रेशियोज ये कहता है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए अपॉन एफ एंड सो ऑन एंड दैट इज इक्वल टू सम रेशियो k, तो सारे न्यूमरेटर्स का सम और सारे डिनोमिनेटर्स का सम का जो रेशियो होगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू k. न सिर्फ ये होगा बल्कि इनफैक्ट ये भी है कि अगर हम कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले इनका तो वो भी हमारा k के इक्वल होगा। एग्जांपल लेने से पहले एक बार प्रूफ समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, सो वी कैन राइट कि a अपॉन बी इज इक्वल टू k है, तो बाय दैट लॉजिक वी कैन से दैट a इज इक्वल टू बी के। सिमिलरली c अपॉन d भी तो इक्वल टू k है,
तो C विल बी इक्वल टू D इंटू के, और E अपॉन एफ भी इक्वल टू के है, E विल बी इक्वल टू F इंटू के। तो यहां से A प्लस C प्लस E डिवाइडेड बाई B प्लस D प्लस F क्या हो जाएगा, A विल बी इक्वल टू B के, C विल बी इक्वल टू D के, और E विल बी इक्वल टू F के डिवाइडेड बाई B प्लस D प्लस F। ये कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा, न्यूमरेटर में भी B प्लस D प्लस F और डिनोमिनेटर में भी बचेगा B प्लस D प्लस F। So this will be equal to k only. Okay, this will be equal to k only. Clear है? हाँ, b plus d plus f should not be equal to 0. बस ये एक चीज होनी चाहिए, b plus d plus f should not be equal to 0. बिकॉज अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर हमारा रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो कभी भी अगर ऐसा कोई रेशियो हमें गिवन है तो वहां पे एक बात ध्यान रखनी है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज को ध्यान रखना है कि ये भी एक केस हमारा बन सकता है व्हेन द समेशन ऑफ डिनोमिनेटर का वैल्यूज इज इक्वल टू 0। अगर वो इक्वल टू 0 है तो उसके लिए एक सेपरेट के का हमें वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? वैसा हम एक क्वेश्चन करेंगे, वहां पे इस बात को देखेंगे। बट ये बात भी समझ में आना चाहिए कि ये हमारा बेसिक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 होगा किसी भी क्वेश्चन में तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है? क्यों होगा ये बात जब नंबर सिस्टम में चीजें समझेंगे तो वहां पे एक बार देख लेंगे। क्लियर है? ओके, तो अब एक और एक्सटेंशन इसका देख लेते हैं कि अगर कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा गिवन है, फॉर एग्जाम्पल ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी एंड दिस इज इक्वल टू ई बाई एफ। ओके, और फिर हमसे क्वेश्चन पूछे कि ए प्लस 2c प्लस 3e डिवाइडेड बाई बी प्लस 2c 2d प्लस 3f, इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी? ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कभी कोई ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो a अपॉन बी है। ठीक है? तो a और b का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। c और d का कोफिशिएंट 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। e और f का कोफिशिएंट 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि c का कोफिशिएंट 2 है, d का कोफिशिएंट 3 है, तब प्रॉब्लम है, बिकॉज तब फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। बट इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और अगर हम रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 2c अपॉन 2d, एंड सिमिलरली दिस इज इक्वल टू e अपॉन f, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 3e अपॉन 3f। ठीक है? अब a अपॉन b is equal to 2c upon 2d is equal to 3e upon 3f, so we can say that a plus 2c plus 3e upon b plus 2d plus 3f, this is also equal to k. If this is equal to k, तो ये भी हमारा k के बराबर होगा। क्लियर है? Similarly, if the question is saying कि a minus c plus e upon b minus d plus f का रेशियो क्या होगा, so this will also be equal to k by the same logic. क्लियर है? ओके, ठीक है। तो अब दो चार चीजें और जो स्टार्ट में हमने स्किप कर दी थी, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन वगैरह का, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन का, कि इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे अगर कभी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए। इन जनरल कैट में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट बाकी ओमिट्स में आ सकता है, तो ये भी शॉर्ट में 2 मिनट में अपना काम हो जाएगा। समझ लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में हमें वैल्यूज गिवन है ए एंड बी, फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी। तो इफ 3 वैल्यूज आर गिवन ए बी एंड सी, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या आएगा उनका? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर प्रोपोर्शंस में लिखते हैं इन वैल्यूज को, तो लेट अस से फर्स्ट प्रोपोर्शन x है, तो x इज टू a इज इन प्रोपोर्शन विद b इज टू c, यही तो प्रॉपर्टी आएगी। और फिर प्रॉपर्टी लगा दें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि x इंटू c, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन a इंटू b। तो x इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b, और यहाँ से हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी। याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, बस प्रैक्टिस करेंगे 2-4 क्वेश्चन, वैसे ही समझ में आ जाएगा। इसे प्रोपोर्शन लगाना है, मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की प्रॉपर्टी लगानी है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, तो अगर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, विच इंप्लाइज कि ए इज टू बी बी इज टू एक्स। ठीक है, यानी ए और बी का जो रेशियो होगा वही बी इज टू एक्स का रेशियो होगा। तो इन दैट केस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी ए इंटू एक्स विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो एक्स विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो थर्ड प्रोपोर्शन विल बी बी स्क्वायर बाई ए इन सच ए केस।
सिमिलरली आ सकता है कि फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी, तो ए इज टू बी इज इन प्रपोर्शन विद सी इज टू, मान लेते हैं फोर्थ प्रपोर्शन एक्स है हमारा, अगेन सेम प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी सी, तो एक्स विल बी इक्वल टू बी इंटू सी अपॉन ए, तो फोर्थ प्रपोर्शन इन सच ए केस विल बी इक्वल टू बी इंटू सी अपॉन ए। क्लियर? लास्ट में रह जाता है हमारा डुप्लीकेट रेशियो ट्रिप्लीकेट रेशियो, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर ओमिट्स। तो व्हाट इज अ डुप्लीकेट रेशियो? इफ क्वेश्चन आस्किंग डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो अगर हमें ऑलरेडी रेशियो गिवन है, फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी गिवन है, तो डुप्लीकेट रेशियो विल बी ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो दैट विल बी ए अपॉन बी का होल क्यूब। और सब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट यानी कि टू सब डुप्लीकेट हो जाएगा ए अपॉन बी टू द पावर 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी। एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ए अपॉन बी की पावर 1/3 हो जाएगा। दीज आर सम बेसिक डेफिनेशंस। अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा ए अपॉन बी टू द पावर 1/3 और क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन बी। क्लियर? दिस इज ऑल द बेसिक्स। अब कुछ फटाफट से एग्जांपल्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if a is to b is equal to b is to c and that is equal to 3 is to 5, तो a is to b is to c क्या होगा वैल्यू? तो वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, दैट a अपॉन b is equal to b upon c and that is equal to 3 upon 5, isn't it so? a और b का रेशियो क्या है? 3 is to 5 एंड b और c का रेशियो भी है 3 is to 5। ऑलरेडी रेशियो में हम देख चुके हैं, क्या करेंगे? एडजस्टेंट्स को फिल कर देंगे, तो c की जगह 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 into 3 a विल बी इक्वल टू 9, b आ जाएगा 5 into 3 15 और c आ जाएगा 25, तो 9 is to 15 is to 25, दैट विल बी अवर रेशियो ऑफ a b and c। कोई दिक्कत? और यहाँ से ये भी चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज दीज a b and c आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तभी तो ऐसा आया। ठीक है, दे आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो यू कैन चेक कि b स्क्वायर, सिंस दिस इज b, दिस इज c, दिस इज a, और अगर हम वैल्यूज 9 15 25 भी मान लें, तो b का स्क्वायर क्या आएगा? b स्क्वायर विल बी 15 स्क्वायर विच इज 225 and that is equal to a into c, यानी कि 9 into 25, isn't it so? Clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the mean proportional of numbers 32 and 18? So mean proportional is nothing but geometric mean only. So mean proportional, if that is equal to b, तो that b will be equal to square root of ac, or b square is equal to ac, तो स्क्वायर रूट ऑफ a एंड 32 एंड 18 निकाल लेते हैं, तो मीन प्रोपोर्शनल हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32 इंटू 18, तो दिस इज 32 यानी कि 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 36 है, स्क्वायर रूट 16 का आ जाएगा 4, 36 का आ जाएगा 6, तो 4 इंटू 6 यानी कि 24 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड 36। 18 और 36 का फर्स्ट प्रोपोर्शन, लेट अस से दैट इज x, तो x is to 18 is in proportion with 18 is to 36, x into 36 is equal to 18 into 18, 36x is equal to 18 into 18, 18 से 2 टाइम्स जाएगा, so x will be equal to 18 upon 2, that is equal to 9, that is equal to 9। और जब भी हमें नंबर्स में गिवन है तो ये चीज़ और भी आसान हो जाती है, ध्यान से समझो कि हमारा x is to 18 is in proportion to 18 is to 36, लिख सकते हैं बात। और 18 से जब हम 36 में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं, जब x से 18 में जाएंगे तब भी तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, यानी कि x हमारा क्या होना चाहिए? x शुड बी 18 डिवाइडेड बाई 2, स्ट्रेट अवे दिख रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू 9। क्लियर? और इसके लिए लिखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे दिख रहा है 18 से 36 डबल हो रहा है, तो 18 से अगर तुम फर्स्ट प्रोपोर्शनल पे जा रहे हो तो वो हाफ होगा, यानी कि 9 होगा। 18 से 36 अगर हमारा डबल हो रहा है तो 18 से पीछे जाओगे, तुम बैकवर्ड्स जाओगे तो डिवाइड बाई 2 करोगे, क्योंकि फॉरवर्ड जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 किया है, तो बैकवर्ड जाने के लिए डिवाइड बाई 2 करोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड 36। अगेन
अब यहाँ पे अगर तुम वैसे ही समझ पा रहे हो जैसे अभी हमने लास्ट वाला एग्जांपल किया, तो अब हमें फॉरवर्ड ही जाना है। 18 से 36 पे गए तो क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है। अब 36 से आगे जा रहे हो तो फिर से मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 72। तो थर्ड प्रोपोर्शन विल बी 72, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज फॉर्मूला लगा के करना है, समझ के करना है, तो वैसे करोगे कि 18 is to 36 and that is equal to 36 is to x. So 18 into x will be equal to 36 into 36. 18 से जाएगा 2 टाइम्स, तो x will be equal to 36 into 2, that is 72. बट ये कितना प्यारा सा मेथड है, और अगर समझ में आ जाएगा तो फिर भूलोगे कभी नहीं जिंदगी में। क्लियर है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को, समझ पा रहे हो चीज़ों को? ठीक है, तो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी, उनको समझ के तुम करना शुरू करोगे। ठीक है, थोड़ा सा 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो जो तुम्हारी समझ है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 12, 16 एंड 18। फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए इस बार। 12:16 का जो रेशियो है वही रेशियो हमारा होगा 18:x का। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 12 into x विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 16 into 18। तो 12 6 से 2 टाइम्स जाएगा या 3 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 8 into 3 विच इज इक्वल टू 24। तो और फोर्थ प्रोपोर्शनल विल बी 24। क्लियर? और जैसे हमने पीछे वाले समझ के क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही करेंगे। तो कैसे देखेंगे इसको, 12 से हम 16 पे गए तो रेशियो कितना आ रहा है, 3 और 4 का रेशियो है, 3 यूनिट था भाई, 4 into 3 इज 12, 4 into 4 इज 16। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 3 यूनिट से हम 4 यूनिट पे जाएंगे, तो दिस विल बी 3 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा 6, 4 यूनिट आ जाएगा 24। ठीक है, तो ऐसे समझ के करोगे रेशियो से तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a plus b upon a minus b is equal to 15:1, then we have to find the value of a is to b। a is to b का वैल्यू क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें, a plus b अपॉन a minus b गिवन है, दैट इज 15/1, और पता लगाना है हमें a अपॉन b। अगर हम कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दें स्ट्रेट अवे, तो a plus b प्लस a minus b अपॉन a minus b, सॉरी अपॉन a plus b माइनस a minus b, and that will equal to 15 plus 1 upon 15 minus 1. So this will become 2a अपॉन 2b is equal to 16/14। सिंप्लीफाई होके हो जाएगा a अपॉन b will be equal to 8/7। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, स्ट्रेट अवे हमें बस इतना ही करना था, कंप्यूटर डिविजन लगाना था। 15 + 1 16, 15 - 1 14, तो यही आंसर आ जाएगा 16/14, जो सिंप्लीफाई होके हो रहा है 8/7 एंड नथिंग एल्स। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इफ a plus b upon a minus b is equal to 15/1, then we have to find the value of a square minus b square। a square minus b square की वैल्यू क्या होगी? नाउ a square minus b square क्या होता है, दैट विल बी a plus b into a minus b। बट हमें a plus b और a minus b की वैल्यूज नहीं पता है, हमें रेशियो पता है, वी नो रेशियो क्या है इसका। तो a plus b अगर हमारा लेटेस्ट से a plus b अपॉन a minus b अगर 15/1 है, तो वी कैन से कि दिस मे बी इक्वल टू 15k/1 के। ठीक है, सो a plus b हमारा अगर 15k है, तो a minus b हो जाएगा 1k और k, तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 15k²। बट यहाँ पे k² की वैल्यू क्या है वो तो हमें नहीं पता, वो तो नहीं पता, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, क्योंकि हमें और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो a² माइनस b² विल बी 15 मल्टीप्लाइड बाई k²। बट k की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी या k की वैल्यू क्या होगी, दैट वी डू नॉट नो, सो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कोई रेशियो निकालना होता तो शायद हम निकाल पाते, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी वो हम नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन में, सो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a upon b is equal to c upon d and that is equal to 3/5, तो we have to find the ratio a² minus c² upon b² minus d²। पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि कैसे हम निकालेंगे a² minus c² upon b² minus d²। क्या कोई प्रॉपर्टी हमारे हेल्प करेगी, जो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, क्या कहीं से हम ये रेशियो निकाल सकते हैं? a² minus c² upon b² minus d², क्या कर सकते हैं? अगर कंपोनेंट डिविडेंड से सोचते तो वहाँ से तो हम a plus c अपॉन a minus c, वहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते थे, क्या उससे कुछ कर सकते हैं? उससे कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और क्या हो सकता है? अच्छा, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d एंड दैट इज इक्वल टू 3/5। तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि a प्लस सी अपॉन b प्लस डी क्या होगा, लॉ ऑफ इक्वल रेशियो से क्या होगा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3/5। एंड सिमिलरली कोई और लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि a माइनस सी
अपॉन बी माइनस डी, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3/5, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3/5, इजंट इट सो? और अगर दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 3/5 into 3/5, which is 9/25. So our answer in this case will be 9/25. क्लियर? या फिर एक ही स्टेप में हम कर सकते थे कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू 3/5, अगर हम स्क्वायर कर दें डायरेक्टली इसको, तो वी कैन राइट दैट a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 9/25. तो इफ दैट इज सो, तो a स्क्वायर और सी स्क्वायर का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 9/25. डायरेक्टली निकल आता, दोनों बातें एक ही हैं, समझ पा रहे हो? ठीक है, समझ पा रहे हो? एक और तरीका क्या हो सकता था कि तुम इस केस में अपना वैल्यूज अज्यूम कर लेते, ए बी सी डी की कोई भी वैल्यू मान लेते, बस इक्वल नहीं मानते क्योंकि इक्वल मानने पे 0/0 आ जाएगा. ठीक, तुमने लेट अस से मान लिया कि ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5. ठीक है, एक सेकंड, ए और बी को बड़ा मान लें क्योंकि बाद में स्क्वायर कर रहे हैं तो निगेटिव ना आए, अदरवाइज निगेटिव आ गया वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बट क्यों वैसे सोचना. तो ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 10 और सी इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 5 पुट कर दें. ठीक है, तो दैट विल बी 6 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो दिस विल बी 36 माइनस 9 इज दैट इज 27, और नीचे आ जाएगा 27/75, 3 से डिवाइड करके दिस विल बी 9/25 ओनली. तो वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो. हालांकि ये मेथड समझ में इसलिए आना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली हर क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे, तो प्रॉपर लॉजिक भी समझ में आना चाहिए. क्लियर है? ठीक है, बाकी कोई टिपिकल कैलकुलेशन हो तो वहां पे तुम वैल्यूज पुट करके स्ट्रेट अवे अपना आंसर निकाल लोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 पॉजिटिव नंबर्स p, q and r satisfy the following expression, so we have to find the value of k. k की वैल्यू क्या होगी, एंड गिवन क्या है हमें, q प्लस आर बाई पी इज इक्वल टू p प्लस आर बाई क्यू एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू p प्लस क्यू बाई आर एंड दैट इज इक्वल टू k. तो यहाँ पे हम k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वी कैन सी, अगर डिनोमीटर को फोकस करो तो p है फर्स्ट वाले में, सेकंड में q है, थर्ड में r है. न्यूमरेटर फर्स्ट में q प्लस आर है, सेकंड में v प्लस आर है और थर्ड में है p प्लस क्यू. तो अगर ऑप्शंस गिवन होते हैं हमें इस क्वेश्चन में, तो किसी भी ऑप्शन में अगर p q r आ रहा है, ठीक है, सो शायद उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा जो रेशियो आएगा वो एक डेफिनेट वैल्यू आएगा. ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लॉ ऑफ इक्वल रेशियोज लगाएं यहाँ पे, अगर हम लॉ ऑफ इक्वल रेशियोज लगाएं, सो कैन बी राइट दैट दिस विल बी इक्वल टू q प्लस आर प्लस p प्लस आर प्लस p प्लस क्यू एंड दैट डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू प्लस आर. न्यूमरेटर में q भी हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, p भी 2 टाइम्स आ रहा है, r भी 2 टाइम्स आ रहा है, सो न्यूमरेटर में 2 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर एंड दैट डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू प्लस आर एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू k. इजंट इट सो? ठीक है, अब इससे पहले कि तुम p प्लस क्यू प्लस आर को कैंसिल आउट करो, एक बात जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी और शायद तुम रिकॉल कर पा रहे होगे, अगर सेशन को तुमने ध्यान से देखा है, समझा है, बातों को समझा है, अगर नहीं रिकॉल कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, बट आगे ये बात ध्यान रखनी है कि कैंसिल आउट करने से पहले हमें ये जरूर लिखना है, ये जरूर सोचना है कि जो डिनोमीटर है हमारा p प्लस क्यू प्लस आर, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0. और जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तभी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और जैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें आ जाएगा k इज इक्वल टू 2. विल गेट दैट k इज इक्वल टू 2. क्लियर है? ठीक है, k इज इक्वल टू 2. और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्लियरली हमें लिखा है 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, p क्यू एंड आर 3 पॉजिटिव नंबर्स. तो अगर पॉजिटिव नंबर्स है तो फिर 0 तो नहीं हो सकता सम उनका, सम विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 0, पक्की बात है ग्रेटर देन 0 होगा. इजंट इट सो? तो k इज इक्वल टू 2 हमें इस क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा. बट अगर पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे लेटर से नहीं लिखा होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ बातें हो सकता है तुम्हें अभी समझ में नहीं आए. ठीक है, कुछ चीज़ें जो समझ में आ रही है उनको समझते चलो, जो नहीं समझ में आ रही है उनको होल्ड पे रखो, अपनी नोटबुक में अलग से नोट कर लो कि एक बार तुम फिर से आके इस सेशन को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देखोगे. ठीक है, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझोगे जस्ट इन केस अगर अभी नहीं समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, बट उसको होल्ड पे जरूर रखो. हम सारी बातें समझते हुए साथ में इसलिए चल रहे हैं ताकि आगे जब दोबारा मैं तुम्हें रिकॉल करूँ तो मेरी कॉल ये चीज़ आए कि हाँ ये बात एक बार पहले भी डिस्कस हुई थी, या जब तुम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट जब भी तुम कैंसिल आउट करो p प्लस क्यू प्लस आर को या कोई भी वैल्यू जो डिनोमिनेटर में गिवन है, तो हमेशा तुम्हें बात याद है कि वो चीज़ 0 नहीं होना चाहिए तभी कैंसिल आउट होगा. अदरवाइज तुम्हें एक सेकंड केस भी कंसिडर करना पड़ेगा जहां पे कि उस वैल्यू को 0 करके तुम एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे. ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में 3 पॉजिटिव नंबर्स नहीं गिवन होता तो फिर उस केस में हमें एक सेकंड केस और लेना होता जिसमें कि p प्लस क्यू प्लस आर हमारा इक्वल टू 0 होता. एंड इफ दैट इज सो कि अगर p प्लस क्यू प्लस आर हमारा इक्वल टू 0 है तो उस केस में q प्लस आर हो जाता है हमारा माइनस p.
माइनस पी हो जाता, और इन दैट केस क्यू प्लस आर अपॉन पी हो जाता -1। और सिमिलरली पी प्लस आर बाई क्यू भी -1 होता, पी प्लस क्यू भी आर भी -1 होता। सो के इज इक्वल टू -1 भी हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता। अगर ये जीरो नहीं होता, अगर ये जीरो हो सकता है पी प्लस क्यू प्लस आर सम हमारा, अगर सारे नंबर्स पॉजिटिव नहीं होते, सो इन दैट केस के इज इक्वल टू -1 भी हमारा एक सॉल्यूशन होता है। तो एक सॉल्यूशन तो के इज इक्वल टू 2 मिलता है, और एक सॉल्यूशन मिलता है के इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्लियर है। और शायद रेशियो में भी ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट प्रॉब्ली हमने एक ऐसा क्वेश्चन रेशियो के टाइम पे भी डिस्कस किया है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो बी इज अ मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी, सो वी हैव टू फाइंड आउट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टू द पावर -2 माइनस बी टू द पावर -2 प्लस सी टू द पावर -2। गिवन क्या है, बी मीन प्रोपोर्शनल है ए और सी का, यानी कि बी ज्योमेट्रिक मीन है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आएगा, तो बी इज इक्वल टू रूट ए सी कहेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में मेंशन है दैट इज वाई हमने प्रॉपर्टी लिया दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का यूज करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। अब एक बार फिर से अपने एक्सप्रेशन को प्रॉपर्ली लिखते हैं। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है, तो बी स्क्वायर की जगह ए सी ही लिख देते हैं, माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर है, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर की जगह ए सी लिख देंगे प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। सबसे पहले डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर, यानी कि इनका एलसीएम लेते हैं, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा हमारा। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा फर्स्ट वाले में सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर, सेकंड वाले में आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए सी, और थर्ड में आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर। और न्यूमरेटर में है ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी वैल्यूज से निकालना भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, और बाद में अलजेब्रा में इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को या इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम बार बार डिस्कस करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, और सिमिलरली हमारे डिनोमिनेटर में भी ए सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर आ रहा है। क्या दोनों सिमिलर ही नहीं है? तो क्या इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस वाली वैल्यू, क्योंकि ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्योंकि जब फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हो तो ये न्यूमरेटर में आएगा, पलट जाएगा, इजंट इट सो? ठीक है, सो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, और क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, दिस इज ए सी का होल स्क्वायर विच इज बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये हमारा बन जाएगा रिजल्ट बी की पावर 4, बी टू द पावर 4 बन जाएगा रिजल्ट। ओके, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? एंड अगेन जब हम ये वैल्यू कैंसिल आउट कर रहे थे तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, बिकॉज सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है अल्टीमेटली, तो सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई बिलीव इस सेशन में मज़ा आया होगा तुमको, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो पहले शायद नहीं समझ में आई हो वो आज समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और इन चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे तो कंसोलिडेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रोपोर्शन के, और इसके बाद में फिर वेरिएशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेरिएशन पर कुछ बढ़िया से सवाल करेंगे। ठीक है, अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना, और साथ में टेलीग्राम चैनल भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसी बात के साथ इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, अपना फीडबैक भी जरूर देना, सेशन अगर पसंद आया है, समझ में आई है चीज़ें, तो फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है, तुम फीडबैक देते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो कुछ तो भाई अप्रिशिएशन किया करो, कुछ तो अगर चीज़ें समझ में आई पसंद आई है तो सेशन को लाइक भी किया करो, और अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर किया करो, उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।